अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने, आर्मी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत दी पाकिस्तान आने की। उसके पाकिस्तान आने से सरकार की भी कचूमर निकल गया, इसका अपना भी कचूमर निकल गया, पब्लिक ने इसका बाजा बजा दिया है। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे सवालात होंगे। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि देवबंदी है, बरेलवियों के मुल्क में आ रहा है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि इसकी पुतला जलाया जा रहा है कराची में और पाकिस्तान में जगह जगह पे इसको गालियाँ पड़ रही हैं। शिया, देवबंद, बरेलवी सारे फिरके इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और ऐसी ऐसी बातें इसने की हैं। अब शहबाज शरीफ की सरकार ने इसको बुलाया, शहबाज शरीफ की भतीजी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो ये कहते हैं कि ये क्या मर्द मर गए। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। औरत की लीडरशिप हराम है। दूसरा, इसने जो रेप के बारे में जो खतरनाक बात की है कि एक रेप करने वाला को माफ़ी मिल जाएगी, जिसका रेप हुआ है उस लड़की का को माफ़ी नहीं मिलेगी। If hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah Allah will forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin, and if you have committed murder, it's a major sin. But if you truly repent, Allah will forgive you. As we know, Allah is Rahman Rahim. Now coming to your second question, that is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the woman that they should dress up modestly, they should cover the complete body, except those parts can be seen that is the face. Now if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. But if she wore normal clothes and yet if the person rapes, then it is a test for the girl. For the girl, was she following the advice of Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. अजीज दोस्तों, जाकिर नाइक के बारे में कुछ बोलना मतलब अपना टाइम ज़ाया करना है। मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई मरहूम तारिक फत्ता भाई ने जाकिर नाइक का कचरा निकाल दिया था। Can you imagine 9 o'clock जाकिर नाइक आवर, उसमें ड्रामा करे, वो जो कपिल शो है उसको, कपिल शो को खत्म करें और वहां जाकिर नाइक का फनी ब्रिलियंट, उसमें सिद्धू के बजाय जाकिर नाइक का एक चेहरा पहन के बंदा बिठाया, ऊंचा पजामा पहना के, लंबा कुर्ता पहना के, उसके फ्रंट टीथ बड़े करके, टोपी, अजीब सा क्रीपी सा आदमी नहीं है वो, उसको छोड़ दिया जाए स्टेज, बिल्ली कुत्ते सब भाग जाएंगे वहां से। हाउ कैन दिस मैन, यानी 10-10 हजार, मुझे तो दुख ये है कि इसके फैंस हैं। आई एम मोर हैंडसम देन करके जाकिर नाइक, फिर एक मिस्टर जाकिर नाइक कंपटीशन होना चाहिए बॉडी बिल्डर्स का। इसका मजाक उड़ा के
Send him. Chapter 1, line 2, 35, 92, 79, divided by 8, multiplied by 62, number 52, as I said. बाकी कोई पता नहीं किसको क्या कह रहा है ये आदमी ऐसी गिनती घुमाता है। एक टर्म पता नहीं हिंदुस्तान में है नहीं, घन चक्कर कहते थे आप उसको। हाँ जी जी। और यह है कि जाकिर नाइक के से आप कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप ये देखें कि हराम हराम हर चीज़ कर रहा है ना। ये कह रहा है कि मैंने जब आ रहा था तो मेरे पास 1000 किलो का सामान था, तो मैंने PIA वालों को फ़ोन किया, PIA की चीफ को, कि मेरा 1000 किलो का सामान है। तो उसने कहा कि मैं आपको आधा माफ़ कर देता हूँ, आधे का आप पैसे भर दें। कहता ये कैसे हो सकता है, मैं स्टेट गेस्ट हूँ। अबे चोरी है, चोरी करने के लिए तुम उसको भी मजबूर कर रहे थे और तुम भी चोरी करने का कह रहे थे। भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, तुम किसी की मजदूरी खाओगे, हराम है ना बकौल तुम्हारे। तो ये भी PIA का एक चार्जिंग का रूल है ओवरवेट का। हम भी कभी जाते हैं और अगर एक्सेस बैगेज होता है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? CEO। स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। PIA पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोला भाई गलत है भाई। तुम वो माफ करवा रहे हो और माफ नहीं कर रहा तो अब तुम उसको गलत सुना रहे हो सारा और कह रहे हो इंडिया अच्छा है। अब तुम्हें इंडिया अच्छा लग रहा है तो जाओ ना इंडिया, खुशबू लगा के जाओ। इंडिया वाले तो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वहां से तुम लूट मार करके भागे हो, तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और स्कैम के कई केसेस हैं इंडिया में, तो ये PIA वालों को सुना रहा है। मतलब हर चीज में इसका आप ये देखें कि अब ये कह रहा है यूट्यूब की इनकम हराम है। यूट्यूब की इनकम हराम है, इसका अपना यूट्यूब चैनल चलता है। ये कहता है कि ऐड चलेगी बीच में तो ऐड में लड़की होगी तो हराम हो गई। कह रहे मैं तो नहीं लेता यूट्यूब के पैसे, हालांकि ग्राफ बता रहे हैं कि इसके पास भी पैसा जाता है यूट्यूब का। लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी लेता तो अब उन हज़ारों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के यूट्यूबर्स का क्या होगा जो इसके फ़ैन भी हैं? क्या वो छोड़ देंगे यूट्यूब की इनकम, टिकटॉक की इनकम, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? अजीज़ दोस्तों, इस घटिया आदमी के बारे में मैं मतलब इसकी इतनी सारी चीज़ें चल पड़ी हैं कि इसकी ये अपनी इज्जत बढ़ाने आया था, इसकी तो कचरा निकल गया है। सबसे जो बड़ा वाक़या हुआ ना वो ये हुआ कि वो जो एक्ट्रेस थी, पख्तून एक्ट्रेस, इसने एक प्रोग्राम में इससे
अदब के साथ सवाल किया। इसने कहा मैं लकी मरवत में रहती हूँ, लकी मरवत टोटल इस्लामिक एरिया है, वहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी है, 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे जना भी बहुत होता है, एडल्ट्री, और बच्चों के साथ बहुत ज्यादतियाँ होती हैं। तो उसको डरा धमका के चुप करा रहा है कि तुम इस्लाम पे इल्ज़ाम लगा रही हो, ये वो। सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को। इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophiles। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। बेगैरत के बच्चे, जाके देख ले कभी किसी मदरसे में, तुम भी दाढ़ी वाड़ी साफ करा के जाओ जरा मदरसे में, मौलवी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि तुम्हारी तो शक्ल देख के उल्टी आती है, लेकिन तुम्हें भी मौलवी नहीं छोड़ेगा मदरसे का। झूठ बोल रहे हो तुम, इस्लामिक माशरे के ऊपर इल्जाम। अबे इस्लामिक माशरा जरा जाके देख ले मदरसों में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान छोड़ो, या लंदन में भी ऐसे वाकयात कितने पकड़े गए हैं। तुम्हारे पास अगर किसी चीज का जवाब नहीं है तो कम से कम झूठ तो ना बको। इतना झूठ बोल रहा था, हर प्रोग्राम में इसके झूठ पकड़े गए। तो तारिक भाई ने सही बताया था कि ये इसकी ड्रेसिंग देख लो। देखा जाए तो ड्रेसिंग ये जो करता है ये हराम है, क्योंकि ये जो टाई है ना, ये अंग्रेज ने क्रॉस बनाई थी, क्रॉस के लिए। ये टाई पहनता है ना, अंग्रेज ने क्रॉस के लिए, और ऊपर टोपी पहन लेते हैं। जैसे इमरान खान कुर्ता शलवार पहनता था, ऊपर कोट पहन लेता था। पता नहीं इन लोगों को क्या मतलब वो है कि कुर्ता शलवार इस्लामिक हो गया, ऊपर कोट पहन लिया अंग्रेज का। अबे वास्केट पहनो, अगर जो कुर्ते शलवार के ऊपर वास्केट पहनी जाती है। कोट पहन रहे हैं ये भाई साहब, टोपी पहन रहे हैं, नीचे टाई क्रॉस, और शलवार ऊपर, पतलून भी ऊपर, घुटना टखना, ये जो होता है ना, टखना नजर आना चाहिए। तो मोजे क्यों पहने हैं भाई साहब? मोजे के ऊपर कपड़ा आ गया ना भाई,
अगर टखने के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए तो मोजा क्यों पहना है भाई? ये मेरे सामने बिठा दें, इतने बड़े स्कॉलर बनता है ये, 2 मिनट में नंगा कर दूं और मैं क्या करूंगा? पूरे पाकिस्तानियों ने इसको नंगा कर दिया है। और देवबंदियों ने बुलाया था वो मुफ्ती तारिक मसूद, इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्फेमियां कर गया, माफी मिल गई। शाहनवाज कुंभर ने ब्लास्फेमी नहीं भी की थी, फिर भी माफिया मांगता रहा, उसको मार दिया, और उसको मारने वाले को तोहफे दिए जा रहे हैं। तो ये तारिक मसूद, मैंने कहा था ना कि इसको माफी दिलवाने के लिए आया है, तो माफी दिलवा दी देखें। और ये गवर्नर सिंध, स्मगलर साला, चोर डाकू साले को हम तो जानते हैं ना भाई। हमारी एमक्यूएम में कितनी बार घुसने की कोशिश की थी, जब तक अल्ताफ भाई के हाथ में थी एमक्यूएम, इसकी एंट्री बैंड थी। फिर इसके बाद आर्मी ने घुसा दिया, जब आर्मी ने पूरी एमक्यूएम टेक ओवर कर ली। तो अब ये गवर्नर सिंध बना हुआ है 2% का आदमी, पूरे सिंध की यूनिवर्सिटियों का चांसलर है ये। डॉक्टर जाकिर नायक को ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री दी है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि इसने, अब ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग तो जन्नत में जाएंगे, वो पाकिस्तानी या मुसलमान जो अमेरिका में रहते हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। आपको एक मुसलमान को मुसलमान मुल्क से अगर माइग्रेट करना है तो दूसरे मुसलमान मुल्क में जाना चाहिए। इसने कहा कि करप्शन पे, कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। तो तुम तो पीआईए के डायरेक्टर को फोन करके कह रहे थे ये रिश्वत ही है ना, जो तुम फायदा उठा रहे थे। रिश्वत क्या होती है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, इसके बदले में आप मेरा काम कर दें। तो ये तुम मांग रहे थे फायदा अपने नाम की रिश्वत देके। और फिर जब ये रिश्वत वाली बात कर रहा था तो एमक्यूएम का चोर आजम फारूक सत्तार सो रहा था, तो सब हंसने लगे। तो कहता है क्या बात हुई, क्यों हंस रहे हो? तो बोला वो सो रहा था। पूरा लफ्ज़ नहीं बोला, वरना बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा राशि जो है, सबसे बड़ा रिश्वत लेने वाला है, वो सो रहा था। फारूक सत्तार एमक्यूएम का पहला सबसे बड़े पोजीशन पर आने वाला आदमी था। 86 में जब अभी एमक्यूएम नई बनी थी और म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे, तो ये पूरे कराची शहर का मेयर बना था। और तब से ये सबसे ज़्यादा एमक्यूएम में फ़ायदे इसने उठाए। ये मिनिस्टर भी रहा है, फेडरल मिनिस्टर भी, हर गवर्नमेंट में इसको पोजीशन मिली है। सिर्फ मुशर्रफ के दौर में एक गवर्नमेंट में इसको मिनिस्ट्री नहीं थी, तो इसने नेशनल असेंबली की फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बन गया, जो कि इक्वल टू फॉरेन मिनिस्टर होता है। पूरी दुनिया में घूमता फिरता था, अय्याशियाँ करता था, शादियाँ करता था, बच्चियाँ इतनी पाली हुई थी, और हर चीज़ ये फारूक सत्तार। आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए। क्या हो गया? और सबिन क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे। क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे। सत्तार साहब, फारूक सत्तार साहब, फारूक सत्तार साहब। हेलो फारूक भाई, सुबह हो गए मामू। तो अजीज दोस्तों, और भी डॉक्टर तो मैं इसको कहते हुए मुझे भी अफसोस होता है। ये कहता है कि एक औरत जो है वो मिनी स्कर्ट पहनेगी और एक हिजाब में जाएगी तो रेप किसका होगा? और ये कहता है कि अगर 20 मिनट तक मैं एक लड़की को देखूं और मेरे अंदर हलचल नहीं मचेगी तो मुझे अपने डॉक्टर का इलाज कराना चाहिए। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। इस जैसे बेगैरत आदमी
हम तो 3-3 घंटे इंडियन फिल्म देखते हैं, इंग्लिश फिल्म देखते हैं, टीवी ड्रामे देखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है कि मेकअप करके एक लड़की बैठी होगी, हमें तो कुछ नहीं होता क्योंकि इधर गंद नहीं भरा हुआ ना। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट सेक्स, तो तुम लोगों के जहन में सिवाय ये नहीं भरा हुआ, तुम लोगों की नज़र में औरत सिवाय सेक्स के और किसी काम की नहीं है। तुम लोगों का तो घटिया जहन है, तुम लोगों के जहन में गोबर भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है, तो इसलिए तुम लोगों से हम और क्या एक्सपेक्ट करें। अजीज़ दोस्तों, जाकिर नाइक की और भी कई चीज़ें हैं, मैं आपके सामने क्या क्या रखूं, वक्त ज़ाया करने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।